Students, this is Poonam channel. I am here to teach you class 9th, chapter 1 and a topic from chapter 1, that is rationalization. Today we discuss about the rationalization. Here we use some terms in rationalization that are, we can write under root a into under root a. Here point mean multiplication. इज इक्वल टू, हम इनको एक ही अंडर रूट में लिख सकते हैं, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिया अंडर रूट ए इज़ 2 इंटू अंडर रूट बी इज़ 3 एंड वी कैन राइट इट अंडर रूट 6. 2 इंटू 3 इन द सेम अंडर रूट, that is 6. Now again under root a into under root a means is equal to under root a, both is equal to a. For example, if I can write under root 2 into under root 2, that means it's only 2. Now again, we come to the third formula, that is under root a divided by under root b. We can write it in whole under root a upon b. Students, we recognize that under root a plus under root b का whole square we also studied in the 8th class, that is a plus b का whole square. In identity a plus b का whole square we can write a square plus 2ab plus b square, where a is under root a का whole square plus 2 a is under root a and b is under root b and plus under root b का whole square. A under root a into under root a, that means a. Under root b into under root b, that also means only b. And under root plus के 2 under root a into under root b, that means 2 under root a and b. We can also in rationalization हम ये सबसे ज़्यादा फार्मूला यूज़ करते हैं, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी एंड अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, which results into a square minus b square. The same identity is used here. We can write under root a का whole square a and under root b का whole square in b. We can add the like terms, that means under root a plus under root a, that means 2 under root a, that means 1 under root a is this and 1 under root a is this, that means 1 plus 1 is equal to 2 under root a. But when the digits are different in under root, we cannot add these. We can write the same as it is given in the question. Now we go to the questions. Now we rationalize 1 upon under root 2. In 1 upon under root 2 we have to rationalize that we multiply by under root 2 the denominator term. We can multiply by the denominator term and also divide by denominator term. Multiply and divide. Then 1 into under root 2 upon under root 2 into under root 2. हमने पढ़ा है कि जब हम अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट रिजल्ट इंटू 2 बाय द आइडेंटिटी ऑफ 2. Now we can go through this. We can take it here under root 3. हमें रेशनलाइज करना है इसको 1/2 माइनस के रूट 3. जब इस वाले रेशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं, बट बाय द अपोजिट साइंस, दैट मीन्स 2 प्लस रूट 3 एंड 2 प्लस रूट 3 से ही हम डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे. ऐसा हम क्यों करते हैं? हम हमेशा मल्टीप्लाई डिवाइड इसके जो साइन, यहाँ पर जो साइन होता है उसके अपोजिट से करते हैं. यहाँ पर प्लस माइनस है तो हम प्लस से करेंगे, अगर यहाँ पर प्लस होता है तो हम माइनस से करते हैं. हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें इसको एक आइडेंटिटी बनाना है जो कि है a माइनस बी एंड a प्लस बी, दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर.
और हम इसलिए ऐसा भी करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड हम दोनों क्यों करते हैं ऐसे, कि अगर हम इनको मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और डिवाइड भी कर रहे हैं तो इस इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम इसको और इसको काट देंगे. देन वी गो, देन 2 plus root 3, 1 into 2 plus root 3, and 2 minus root 3 or 2 plus root 3. We can write this equation like that. Then 2 plus root 3 upon 2 का whole square minus के root 3 का whole square by which identity? A plus B and A minus B, that is equal to A square minus B square, where A is 2 and B is root 3. In this equation, A is 2 and B is root 3, and A is 2 and B is root 3. There is one positive and one negative. Then this results into A square minus B square, where A is 2 na, 2 का square minus के where B is root 3 na, then root 3 का whole square. Then this results to 2 plus root 3 upon 2 का square क्या होता है 4, 2 into 2 that is 4, एंड रूट 3 इंटू रूट 3. मैंने बताया आपको कि जब अंडर रूट में सेम टर्म्स होती हैं, अंडर रूट को हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारी वही टर्म आती है. देन क्या आएगा 2 प्लस रूट 3 अपॉन 1, जिसको हम लिख सकते हैं ओनली 2 प्लस रूट 3. बच्चे हम क्यों करते हैं अंडर रूट का मतलब होता है, अंडर रूट जब हम कोई भी चीज़ लिखते हैं सिर्फ वेयर हम यहाँ पर जहाँ पर कि एक भी डिजिट मेंशन नहीं करते, तो दैट मीन्स ए की पावर 1/2. अगर मैं लिखूँ यहाँ पर a3 दैट इज़ क्यूब रूट, a की पावर 1/3 दैट मीन्स 1/3. मैं लिखूँ a दैट इज़ 4 दैट मीन्स a की पावर 1/4. मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, वाई अंडर रूट a into under root a is results into a. We know that a की पावर 1/2 into a की पावर 1/2. हमें पता है कि जब बेस सेम होता है तो हमारी पावर्स क्या होती हैं, एडअप हो जाती हैं. देन बेस सेम है 1/2 प्लस 1/2. a की पावर एलसीएम लिया मैंने 2, दैट रिजल्ट टू 1 एंड 1 प्लस 1. a की पावर 2/2 that means 1, that means a. That is why under root a into under root a results into a. Got it? Now we go to the third question. That is third question. Now take 1/7 plus k root 3. इसमें अब मैंने आपको बताया कि हम इसको क्या बोलते हैं, पता है हम इसको क्या बोलते हैं, ऐसे 1/7 प्लस रूट 3, तो हम बोलते हैं कि हम इनके क्या कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे. दैट मीन्स कॉन्जुगेट मतलब इनके अपोजिट 7 माइनस रूट 3 अपॉन 7 माइनस रूट 3. बेटा यहाँ पर पॉजिटिव था तो अब हमने यहाँ पर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करी और डिवाइड भी करी, जैसा मैंने आपको बताया. 1 इंटू 7 माइनस के रूट 3 ये होगा. यहाँ पर ब्रैकेट लगाना मत भूलना. क्यों? अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो 7 प्लस रूट 3 और जो हम लिखेंगे इधर 7 माइनस रूट 3 वो मल्टीप्लिकेशन में पूरे टर्म्स नहीं होंगे, वो हमारी आइडेंटिटी नहीं बनाएंगे. जो हम a प्लस बी और a माइनस बी वाली आइडेंटिटी बनाते हैं ना, वाली नहीं बनाएंगे. 7 प्लस रूट 3 एंड 7 माइनस रूट 3 यही होगा. बीच में आप प्रोडक्ट का साइन लगा लेंगे. देन 1 के किसी से भी मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 7 दैट मीन्स 7 एंड 1 इंटू अंडर रूट माइनस 3 दैट मीन्स अंडर रूट 3. 7. अब मैंने आपको बताया ये कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, a प्लस बी, a माइनस बी दैट्स रिजल्ट इनटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट मीन्स 7 स्क्वायर माइनस के रूट 3 का होल स्क्वायर. मैं इसको लिख देती हूँ a प्लस बी एंड a माइनस बी is equal to a square minus b square, where a is 7 and b is root 3. And 7 minus के root 3, 7 into 7 that means 49 minus के, अब मैंने आपको बताया root 3 into root 3 क्या होगा 3, that means 7 minus के root 3 upon 49 minus 3 that is 46. That is the answer of this question. Now again we go to the next question.
ओके, हम एक नया क्वेश्चन और लेते हैं. डू नॉट गो थ्रू दिस. 4 क्वेश्चन. 1/√5 प्लस के √2. ना, अब की बार हमने दोनों अंडर रूट्स के टर्म लिए हैं. जैसे ही मैंने आपको बताया, हम इसको अच्छे से प्रेजेंट करेंगे तो हम इसको ऐसे लिखते हैं. मैं आपको एक क्वेश्चन अच्छे से प्रेजेंट करके बता देती हूँ, ठीक है. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √5. यहाँ पर बच्चे प्लस है तो अब यहाँ पर हम माइनस लेंगे, क्योंकि कॉन्जुगेट में हमेशा क्या हो जाता है, उसका अपोजिट आ जाता है. देन 1/√5 प्लस √2 इंटू √5 माइनस के √2 अपॉन, ऑलवेज कीप दीज टू टर्म्स इन ब्रैकेट, √5 माइनस के √2. जैसे मैंने बताया ये क्या होता है. अगर हाँ, मैंने देखा है बहुत से बच्चों में ये भी कंफ्यूज होता है कि हम इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं. हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं बेटा. मल्टीप्लिकेशन में हमारे यहाँ पर कितनी भी टर्म्स हैं, हम उनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं. देन √5 माइनस के √2, यहाँ पर प्रोडक्ट में किसके साथ है, 1 के. 1 आपको पता है कि हम जब 1 की किसी से भी प्रोडक्ट करते हैं तो वही आता है. और ये हम इसको क्या लिखेंगे, √5 प्लस √2 एंड √5 माइनस √2. अब हमें पता है बच्चा कि ये किसकी आइडेंटिटी बन रही है, a प्लस बी एंड a माइनस बी. देन √5 माइनस के √2 अपॉन √5 का होल स्क्वायर. होल स्क्वायर का वैसे मतलब बच्चे समझते ही होंगे. जैसे कि √5 का मैंने 2 लिखा है, दैट मीन्स √5 इंटू √5, हम उसकी 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे. एंड माइनस के √2 का होल स्क्वायर. कौन सी आइडेंटिटीज़ है, a प्लस बी एंड a माइनस बी. ये हमने 8th क्लास में भी पढ़ी है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वेयर a इज √5 एंड b इज √2. √5 माइनस के √2 अपॉन √5 इंटू √5 का मतलब क्या होगा बच्चा, 5 एंड √2 इंटू √2, दैट मीन्स 2. √5 माइनस के √2 अपॉन 3. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मैं अब कुछ और अच्छा सा क्वेश्चन लेती हूँ एक, दैट इज़ 5th क्वेश्चन. 1/4 माइनस के 2 √3. Again, here is minus, then we multiply in this terms by 4 plus के √3 and 4 minus √3. इसको हम कॉन्जुगेट भी बोलते हैं जब हम अपोजिट से. एक बात हमेशा याद रखना बच्चा कि यहाँ पर जब माइनस होगा तो हम इसके जो मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ना, वो यहाँ पर पॉजिटिव साइन होगा. जैसे कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4 plus 2 √3. दैट मीन्स 1/4 माइनस 2 √3. इस वाली इक्वेशन को लिखा हमने, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है 4 plus 2 √3 अपॉन 4 plus 2 √3, और आपको इन्हें हमेशा ब्रैकेट्स में रखना है. ब्रैकेट इज़ मैंडेटरी. देखो बच्चा, अब क्या है, 4 plus 2 √3 एंड 4 plus 2 √3 से हमने इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया. मैंने आपको पहले भी बताया हम मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों क्यों करते हैं, ताकि हमारा जो गिवन क्वेश्चन है उस पर कोई भी इफ़ेक्ट ना पड़े और हमारा उसका आंसर भी हो आ जाए. जैसे कि अगर मैं इन दोनों को काटूं तो मेरा रिजल्टेंट क्या आएगा, क्वेश्चन ही आ रहा है ना, तो मैंने कुछ अपनी तरफ से ऐड नहीं करा, मैंने उसको एक बैलेंस बना कर रखा है, ताकि जिसी से उससे मैंने मल्टीप्लाई करा है उसी से मैंने डिवाइड करा. और मैथमेटिक्स में एक बात याद रखना बच्चा कि जिससे हम कभी मल्टीप्लाई की हमें ज़रूरत भी पड़ती है ना करने की, तो हम उसी टर्म से डिवाइड भी करते हैं. अब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है और इधर 1 है, तो 1 के साथ जो भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम तो वही आता है. जैसे कि यहाँ पर आएगा 4 plus 2 √3 ही आएगा. और नीचे क्या है,
4 minus के 2 root 3 and 4 plus के 2 root 3. I can also write this equation like 4 plus 2 root 3. मैं इसको प्लस पहले भी लिख दूँ और बाद में माइनस लिख दूँ, कुछ ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि दोनों टर्म्स क्या है मेरी मल्टीप्लिकेशन में है. अब क्या होता है, ये मेरी क्या बन रही है, a प्लस बी, a माइनस बी. अब मैं इसको सॉल्व कर लूँगी. 4 प्लस 2 रूट 3 अपॉन, अब a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. 4 का स्क्वायर माइनस के, हेयर b, हमें ये ध्यान रखना है यहाँ पर बच्चा b को 2 ही ना लिख देना और ना ही रूट 3 लिख देना. यहाँ पर b क्या है, पूरा 2 प्लस रूट 3 है. तो मैं क्या लिखूँगी यहाँ पर, 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर. कौन सी आइडेंटिटी से, a प्लस बी और a माइनस बी, दैट इज